Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we will continue the chapter number 1 of your history, and that is sources of studying the history of ancient India. So in the last chapter we saw till this line, and that was the valuable creation of a historian is to show not only the big events but how small events play a vital role in changing history, art, architecture, religion, varna, caste, political system, economic, trade, commerce, thought, conduct, and the ideologies related to them have been the content of the history. Okay, so all of these things were the content of the history. ये सारी चीज़ें जो है वो आपके हिस्ट्री में इन्वॉल्व है. आज तक आपने शायद पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी, ट्रेड, कॉमर्स ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, आर्ट, आर्किटेक्चर. ठीक है, अब आप वर्ना के बारे में, रिलीजन के बारे में ये सब डिटेल में पढ़ोगे. ठीक है. With this intention, we shall try to study the history of ancient India. The historian distribute the sources of knowing the history in two parts, and that is unwritten sources and written sources. This is very important, and it comes also in the exam that how many sources are there in the history, and there are two sources to know the history, right? So whenever we are studying the history, we have two sources, that is written sources and unwritten sources. And we will have here a detailed description about both of the sources. And if you want to take history in your college, okay, so in your BA, or if you want to study further history, then it's really important here to study these sources right now. Okay, so let us start with the unwritten sources. The historian have recognized the archaeological inputs as the unwritten sources. The ancient tools, metals, clay vessels, coins, skeletons, human classical sources are known as unwritten sources. Now what is included in the unwritten sources? That is the archaeological inputs. Okay, first of all it's the archaeological inputs. जो भी साइट्स होती है, ठीक है, आर्कोलॉजिकल साइट्स, उसे कहते हैं आर्कोलॉजिकल इनपुट्स. जैसे कि कोई एक एंशियंट प्लेस है, उसमें से कोई हमें स्केलेटन मिला, या कोई एंशियंट वेसल मिला, या क्ले टॉयज मिले, कुछ भी मिला, तो वो आर्कोलॉजिकल इनपुट है, वो अनरिटन सोर्स है. फिर मेटल, क्ले वेसल, कॉइन्स, एंशियंट टूल्स, स्केलेटन, ह्यूमन क्लासिकल सोर्सेस, ये सब अनरिटन सोर्सेस है. नो रिटन मटेरियल आर अवेलेबल इन दिस टाइप. इसमें कोई रिटन मटेरियल नहीं होता. बट द historian scientifically create history with the help of the buried cities, villages and the above mentioned unwritten tools. पर जो हिस्टोरियन होता है वो साइंटिफिकली हिस्ट्री को क्रिएट कर देता है. कैसे क्रिएट करता है? विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री थिंग्स. Major part of the Indian history is prepared from these unwritten sources. Okay, such physical remains of the ancient India are studied with the help of archaeology. The study of this material is known as archaeology. Okay, so the physical remains of ancient India के physical remains जो होते हैं वो study होते हैं with the help of archaeology. ठीक है. The archaeologist मतलब the person who studies this archaeology. The archaeologist search for such ancient places and excavate them. Excavate मतलब उसको खोदना. ठीक है, उस ऐसी जगहों को ढूंढता है और फिर उसको खोदता है. ऑन द बेसिस ऑफ द रिमेन्स फाउंड. अब खोदने के बाद जो रिमेन्स मिले हैं उसको वो साइंटिफिकली अज्यूम करता है कि वो प्लेस और जो लाइफ है ह्यूमन बींग्स की वो कितने साल पुरानी है. ठीक है, समझ में आया? द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड आउट मेनी सच cultural matters in India. It describes a long history starting from a relic of a human life of 14 lakh years old to the period of Harappa civilization such as Old Stone Age, Paleolithic, Middle Stone Age, Mesolithic and New Stone Age, Neolithic, Copper Stone Age, Chalcolithic, Copper Brass
एज एंड आयन एज। ठीक है, इतनी सारी एजेस जो है वो सारी कवर होती है और ये सारी एजेस हम स्टडी करते हैं। ठीक है, टू डिसाइड द टाइम ऑफ द एक्सकेवेटेड रिमेन्स दे यूज सर्टेन साइंटिफिक मेथड्स। The most important method among them is radiocarbon 14, that is C14. According to this method, all the living beings contain C14. After the death of the living beings, C14 starts getting assimilated into the atmosphere. The age of the living being is decided on studying the extent of assimilation of C14 of the living beings in the atmosphere. Okay. अभी अगर ये जो एक्सकेवेटेड रिमेन्स है उसका अगर टाइम डिसाइड करना हो तो वो कैसे करेंगे, तो साइंटिफिक मेथड है बहुत सारी, बट उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है रेडियो कार्बन। रेडियो कार्बन का मतलब क्या है कि हर एक लिविंग बींग्स के अंदर C14 प्रेजेंट होता है और डेथ के बाद C14 जो है वो एटमॉस्फेयर में एसिमिलेट हो जाता है। ठीक है, अभी जो एज है वो उसके बेसिस पे डिसाइड होती है जितना C14 उसके एटमॉस्फेयर में असिमिलेट हुआ है। जितना ज़्यादा C14 असिमिलेट हुआ है उतनी ज़्यादा एज होगी, मतलब उतना ही ओल्ड वो रेमिनेंट होगा, उतना ही ओल्ड वो एंशियंट जो भी मटेरियल फाउंड हुआ है वो होगा। ठीक है, और जितना कम C14 उसमें एटमॉस्फेयर में असिमिलेट हुआ होगा उतनी ही कम उसकी एज होगी। ठीक है, उतने ही कम उसके साल हुए होंगे उसको। From the remains of a plant, the age is determined by using pollen analysis method. The time period of the metals found from the rocks and mines can be determined by the study of the geology. अभी जो ये मेटल्स है उसकी एज माइंस और जो रॉक्स है उसकी एज और जो मेटल्स है जो कि रॉक्स में से और माइंस में से मिले हैं उसकी एज हम जियोलॉजी की स्टडी से कर सकते हैं, और प्लांट्स की एज जो है वो पॉलन एनालिसिस से डिटरमाइन हो सकती है। ये तो हो गए हमारे अनरिटन सोर्सेस, इसमें कोई भी रिटन मटेरियल नहीं आया। पर अब आएंगे रिटन सोर्सेस। रिटन सोर्सेस आर ऑफ 4 टाइप्स: रिलीजियस लिटरेचर, नॉन रिलीजियस लिटरेचर, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन एंड ट्रैवल अकाउंटर ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब जब आप कॉलेज में आ जाओगे तब और 12th में भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैवल अकाउंटर ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स। ठीक है, अभी रिलीजियस लिटरेचर। द इंडियन कल्चर इज लार्जली रिलेटेड टू रिलीजन। इंडिया का कल्चर आपको पता ही है कि रिलीजन से रिलेटेड है बहुत। ठीक है, रिलीजन को इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। अमॉन्ग द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया, ऋग्वेदा इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट। इट्स टाइम पीरियड इज assumed as 1500 BC to 1000 BC. It is the most ancient Veda which contains 1028 suktas and 10 mandals chapters. Suktas means the verses. जो श्लोक होते हैं उसको हम कहते हैं सुक्तास, और 10 मंडल्स मतलब कि चैप्टर्स। 10 चैप्टर है और उस 10 चैप्टर के अंदर 1028 श्लोकास लिखे हैं। ठीक है, ये पूरा जो यहाँ तक पैराग्राफ है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद प्रोवाइड्स द रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यंस। आर्यंस के बारे में आपने अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, चैप्टर 1, 2 एंड 3 में। ठीक है, कि आर्यंस कौन थे। तो अभी जो ये आर्यंस है, ठीक है, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कौन देता है? ऋग्वेद। अभी देखो, बिसाइड्स ऋग्वेद 3 other Vedas were written. ठीक है, thus there are 4 Vedas. Other Vedas are the Yajurved, Samved and Atharvaved. These 3 Vedas were written later than the time period of Rigved. All the 3 Vedas includes the mantras, prayers, religious performance and worldly affairs. इन चारों वेदास में ये चारों चीजें हैं। क्या है? मंत्र है, प्रेयर है, रिलीजियस परफॉर्मेंस है और वर्ल्डली अफेयर्स है। ठीक है,
अभी रिलीजियस लिटरेचर में हमारा सबसे पहले क्या आएगा, वेदास। ठीक है, हमारे सारे वेदास जो है वो हमारे रिलीजियस लिटरेचर में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे इस पेज पे। ठीक है, अभी क्या लिखा है इस पेज पे, द पोस्ट वैदिक लिटरेचर। पोस्ट वैदिक मतलब क्या, मतलब कि वेदास लिख लिए उसके बाद का जो पीरियड है, ठीक है, उसको कहेंगे पोस्ट वैदिक पीरियड। तो अभी पोस्ट वैदिक लिटरेचर इंक्लूड्स ब्राह्मणकास, आर्यनकास, epics, Upanishads, Purans, and also the religious scriptures of Jains and Buddhist religion. Along with it, the Dharma Sutras too are included. Among the epics, the Ramayana and Mahabharata are very important. अभी मैं आपको बोलती हूँ कि 4 वेदास लिख लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा, ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पहले लिखा हमने ऋग्वेदा। ठीक है, उसके बाद लिखे हमने 3 वेदास। ठीक है, कौन से 3 वेदास, तो यजुर्वेदा, अथर्ववेदा और सामवेदा। ठीक है, अभी इन चारों के बाद हमने लिखा क्या, ब्राह्मणकास, आर्यनकास, फिर एपिक्स, फिर उपनिषद, फिर ये क्या है, पुराण। ठीक है, ये सब हमने इसके बाद लिखा। ठीक है, अभी ब्राह्मणकास एक अलग एक लिटरेचर है। आरण्यकास मतलब कि जो आर्यंस ने ये जो जंगल होता है उसमें रह के जो लिटरेचर पूरा लिखा था उसको आरण्यकास कहते हैं। एपिक्स मतलब कि जो ये महाभारत और रामायण है उसको हम एपिक्स कहते हैं। उपनिषद वो भी आगे आएगा। ठीक है, पुराण, बहुत सारी पुराण है बरोबर हिंदू रिलीजन में, तो उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और स्क्रिप्चर ऑफ जैन, ठीक है, आवेस्ता जो है वो पारसी का है, और ये जो जैन का है वो अनेकांत वेदा है। ठीक है, तो बुद्धिस्ट का त्रिपिटक है। ठीक है, रिलीजियस जो बुक होती है वो त्रिपिटक है। ऐसे सारी बुक्स के बारे में हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ लिखा गया है। अभी धर्म सूत्र भी लिखे गए हैं। ठीक है, रामायण महाभारत भी लिखी गई है। तो अभी पुराण्स क्या है, ठीक है, तो पुराण्स आर ऑल्सो फुल ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियल। हावेवर द पीरियड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पुराण्स इज नॉट एविडेंट। पुराण्स कब लिखी गई ये हमें नहीं पता। ठीक है, बट बहुत सारी पुराण्स हैं। भगवत पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट। ये सारी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारे नाम है पुराण के। उपनिषद आर मोर देन 100 एंड दे आर कॉल्ड वेदांतास। ठीक है, वेदांतास उनको हम कहते हैं, और वो 100 से भी ज्यादा है उपनिषद। दे रिवील द इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ऑफ द देन इंडिया। मतलब कि स्पिरिचुअली कैसे इंडिया ने प्रोग्रेस किया। ठीक है, उस टाइम में उसके बारे में हमें उपनिषद बताते हैं। ठीक है, अभी क्या है, दे ऑल्सो इंक्लूड द ग्रेट फिलोसॉफिकल डिस्कशन ऑन सोल एंड सुप्रीम सोल। सोल का मतलब क्या है, आत्मा, और सुप्रीम सोल का मतलब क्या है, परमात्मा। ठीक है, तो उनके बारे में भी हमें उपनिषद बताते हैं। कथा, केना, मंडूक्या एंड द मुंडकोपनिषद्स आर द इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारे उपनिषद्स के नेम है। ठीक है, जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, द पोस्ट वैदिक पीरियड इज कंसिडर्ड अप टू 600 BC. Apparently, Dharma Sutras and Gruhya Sutra of the Hindu literature were formed in the 6th century BC. It also seems that important literature concerning Buddhist and Jain religions too were written during the same time. ठीक है, ऐसा लगता है जैसे ये सारा जो है वो सेम टाइम में ही लिखा था। ठीक है, त्रिपिटक अभी आया बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक है, त्रिपिटक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट रिलीजियस लिटरेचर. इट इंक्लूड्स सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधाम पिटक. द इनिशियल लाइफ ऑफ बुद्धा इज डिस्कस्ड इन सुत्त पिटक. Vinay Pitak includes the rules for the Buddhist monks and nuns. Abhidham Pitak includes the Buddhist philosophy. Besides this, the
द नॉलेज ऑफ द जातका स्टोरीज इन बुद्धिस्ट लिटरेचर होल्ड्स ग्रेट इम्पोर्टेंस। अभी मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ, ठीक है। देखो ये क्या है, कहाँ लिखो, थोड़ा सा यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड्स में मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ये है बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है। अभी बुद्धिस्ट लिटरेचर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, त्रिपिटक, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल जैसे ये त्रिपिटक एक बुक है, ठीक है, उसके अंदर 3 उसके पार्ट्स है, क्या है, क्या इंक्लूड होता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक, ठीक है। क्या ये 3 चीजें इंक्लूड होती है, ठीक है। तो क्या है, सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधाम पिटक, ठीक है। अभी सुत्त पिटक में क्या डिस्कस होता है, देखो इनिशियल लाइफ ऑफ बुद्धा, इनिशियल लाइफ किसकी, बुद्धा की। इनिशियल लाइफ मतलब क्या, जब गौतम बुद्ध जो है वो पहले से ऐसे संत या जो बुद्धा है वो नहीं थे, ठीक है। उनका नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, और वो एक आई थिंक किंग थे, ठीक है। तो वो कैसे उनकी पूरी जर्नी है, कैसे उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इनटू अ मॉन्क, ठीक है, वो पूरा इस सुत्त पिटक में डिस्कस होता है। अभी विनय पिटक में क्या डिस्कस होता है, रूल्स किसके लिए, मॉन्क्स और नन्स के लिए। जो साधु होते हैं, बुद्धिस्ट साधु जो कि मेल होते हैं, उनको हम कहते हैं मॉन्क्स, जो फीमेल होते हैं उनको कहते हैं हम नन्स, ठीक है। तो अभी क्या है इसमें है रूल्स, ठीक है, किसके लिए, मॉन्क्स और नन्स के लिए। और अभिधाम पिटक में बुद्धिस्ट की फिलोसॉफी मतलब क्या, कि उनकी जो बिलीव्स है सारी, कि सोल क्या है, धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कर्मा क्या है, ठीक है, ये सारा फिलोसॉफी है। तो इसमें फिलोसॉफी है, बुद्धिस्ट की फिलोसॉफी, ठीक है, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा है, पर इससे आपको लर्न हो जाएगा क्या है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर। फिर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है त्रिपिटक में 3 चीज़ें इंक्लूडेड है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधाम पिटक। सुत्त पिटक में इनिशियल लाइफ ऑफ बुद्धा, इसमें रूल्स ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स, और अभिधाम पिटक में बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, ठीक है। ये इजीली लर्न हो जाएगा, ऐसे आप करोगे ना तो। Besides this, the knowledge of the Jataka stories in Buddhist literature holds great importance. Jataka stories आती हैं वो Buddhist literature में ही होती है, वो भी बहुत important है। The literary volumes of the religious literature of the Jain religion is known as अगम ग्रंथ, ठीक है। ये जो जैन के रिलीजन होते हैं उसको हम कहते हैं अगम ग्रंथ। Agams include the philosophical discussion of about 24 Jain तीर्थंकरास। तीर्थंकरास आपको पता ही होगा, फर्स्ट ऋषभ देव है, ठीक है। फर्स्ट कौन है, ऋषभ देव। और 24th जो है वो है महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी। तो ये जो फर्स्ट वाले हैं और ये जो 24th वाले हैं, उन सभी का डिस्कशन जो है वो इसमें है अगम ग्रंथ में, ठीक है। Its first compilation was done during the Mauryan period. The second compilation was done in the 6th century BC in the Vallabh of the Gujarat. ये वल्लभ विद्यालय है, यूनिवर्सिटी है गुजरात में, ठीक है, उसमें ये उसका फर्स्ट कॉम्पिलेशन हुआ था। अभी नॉन रिलीजियस, ये तो हो गया पूरा रिलीजियस, ठीक है, कि रिलीजन क्या डिस्कस किया है, किसमें क्या है, ठीक है। अभी नॉन रिलीजियस की बात की है, तो नॉन रिलीजियस क्या है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। द नॉन रिलीजियस लिटरेचर इन इंडिया इंक्लूड्स मेनली स्मृति ग्रंथ, Samhitas, plays and historical books. Manusmriti could be considered as an important non-religious literature as the first law book of ancient India. Kautilya's Arthashastra is also a similar type of important book. It gives information about the political organization, economics and about the form of state. Okay. अभी क्या है, नॉन रिलीजियस में स्मृति ग्रंथ है,
संहितास है, प्लेस है, हिस्टोरिकल बुक्स है, ये सब इम्पोर्टेंट है। अभी मानुस्मृति में क्या है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट नॉन रिलीजियस लिटरेचर है। अभी पहली लॉ बुक क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अभी वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है, इकोनॉमिक्स के बारे में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और फॉर्म ऑफ द स्टेट, कैसे पूरा स्टेट एक बनता था, ठीक है। अष्टाध्यायी written by the Panini is considered the most important and first important book on संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर के ऊपर अगर एक इम्पॉर्टेंट बुक हो तो वो है पाणिनि का अष्टाध्यायी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स को हियो, ये एग्ज़ाम में आती ही है, ठीक है। आप ये सारा जो है वो लर्न कर लो। कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, ये भी आप लर्न कर लो, ठीक है। ऊपर भी जो हमने त्रिपिटक का और ये सब जो लर्न किया वो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर उपनिषद जो है उनको वेदांतास कहते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सारी लाइंस, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी तो भी ठीक है, चलेगा, आपके स्कूल वाले एग्ज़ाम लेंगे, बट बोर्ड में जब आप आओगे 12th में जब हिस्ट्री लोगे तब आपको जो है वो एक लाइन उसकी करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी द स्कॉलर्स बिलीव दैट इट मस्ट हैव बीन फाउंड in the 6th or 5th century BC. Diganikai, Anguttarinike, and the Majjhimanikai are the important Buddhist literature. ये सारे important Buddhist literature है. They reveal the history of the establishment of the state and then the social situation. The literary works include the Sanskrit plays. The great literary figure Kalidas Sanskrit play are very famous. अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूतम and Ritu Samhar were written by him, reveal the social condition of the India of the Gupta period. Apart from it, the plays of the great poet Bhas and the Shudrak too could be considered important, ठीक है। अभी जो लिटरेरी वर्क्स जो कि है वो संस्कृत प्लेस है, ठीक है। ग्रेट लिटरेरी फिगर कालिदास, उनका नाम बहुत फेमस है, उन्होंने संस्कृत प्लेस किए हैं। उनका एक प्ले है अभिधाम पिटक, दूसरा है मेघदूतम और तीसरा है ऋतु संहार, ठीक है। वो उन्होंने ही लिखे हैं। रिटन बाय हिम, रिवील सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। सोशल कंडीशन क्या थी उसको रिवील करता है। अपार्ट फ्रॉम इट, प्लेस ऑफ ग्रेट पोएट भास और शूद्रक, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी क्या है, राजतरंगिणी is also an important historical book of 20th century. It is also most important line. It was written by the state poet of Kashmir, Kalhand, ठीक है, इसको भी अंडरलाइन। It includes the history of Kashmir. History of Kashmir जो है वो included है। According to the hypothesis of the modern history, such a historical book is not found in the ancient India. ऐसी historical book ancient India की आज तक फाउंड नहीं हुई है। अभी आप देख लो कि ये कितनी अच्छी बुक होगी, ठीक है। ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर हिस्ट्री को स्टडी करना है तो। Harshcharit is one of the many books in which there is historical refer epic. It was written by Ban Bhatt, the court poet of the Emperor हर्ष, जो कि एम्परर हर्ष है, उनके जो कि कोर्ट पोएट थे बाण भट्ट, उन्होंने लिखी थी हर्षचरित, ठीक है। अभी ये तो ऊपर का नॉर्थ का हो गया सब, ठीक है। अभी साउथ इंडिया में क्या है, संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर कुड बी कंसिडर्ड द बेस्ट नॉन रिलीजियस लिटरेचर। दे वर कंपोज्ड इन द तमिल लैंग्वेज, ठीक है। अभी देखो संगम लिटरेचर है तो क्या है, तमिल लैंग्वेज। मेनी पोएट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन इट, मेनी पोएट्स, ठीक है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। थ्री सच संगम्स took place in the मदुराई, ठीक है, मदुराई प्लेस है। The literature that was written in that is called संगम लिटरेचर। अभी इसमें जो लिटरेचर लिखा था उसको हम कहते हैं संगम लिटरेचर।
It includes the appreciation of the poems of the kings and the brave men. ठीक है, brave men और जो kings होते हैं उनकी appreciation poems है, और ये poems है वो कोर्ट में संग होती थी. ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि जो संगम लिटरेचर है, ठीक है, वो साउथ इंडिया में लिखा था. वो एक नॉन रिलीजियस लिटरेचर है, वो तमिल में लिखा था. बहुत सारे पोइट्स ने कंट्रीब्यूशन दिया है. 3 संगम मदुराई में लिखे थे. ये जो लिटरेचर है उसको कहते हैं संगम लिटरेचर. ठीक है, उसमें अप्रिसिएशन पोयम है किसकी? किंग्स की और ब्रेव मैन की. ये सारी पोएम्स जो है वो कोर्ट में संग होती है. ये लिटरेचर जो है वो इंक्लूड करता है एपिक्स लाइक. ओके, अभी वी विल स्टार्ट with the new page. Okay, it includes epic like the Shilpadigram and the मनी में मिख मलिया. ठीक है, ये सारी तमिल के लैंग्वेज है तो थोड़ा सा आपको प्रोनाउंसिएशन करने में भी डिफिकल्टी होगी. ठीक है, बट आपको जो स्पेलिंग है वो उसका याद रख लेना है. संगम लिटरेचर इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल, सोशल and economic and cultural aspect of the South India. Of the period 300 BC to 300 AD, Sangam literature is supposed by finding archaeologists and the foreign travelers. Okay, अभी coins and inscriptions, ये भी बहुत important है. देखो मैंने यहाँ पे लिखा ही है important. ठीक है, बहुत important है. ये क्वेश्चन आते ही हैं. ठीक है, हर बार. Okay. Coins. Coins are a great source of studying history. The study of the coins is called numismatics. अभी ये जो हम coins की study करते हैं उसको कहते हैं numismatics. Okay. This scientific tool studies the time, script, metal of the coins and infers the historical facts. The symbols and the signs on the coins reveal the history. The oldest coin in India are the coins of Punchmark. They were made of silver and copper. कॉपर का मतलब होता है तांबा. ठीक है, their period was the 5th century BC. These coins were of the different shapes. अभी क्या क्या लिखा है देखो. जो साइंटिफिक टूल है, ठीक है, ये टाइम, स्क्रिप्ट और मेटल, ये 3 चीज़ें एक कॉइन्स की स्टडी करता है और हमें क्या देता है? हिस्टोरिकल फैक्ट्स देता है. सिंबल्स और साइंस जो कि कॉइन्स के ऊपर लिखे हैं उसके बेसिस पे वो हिस्ट्री रिवील करता है. अभी ओल्डेस्ट कॉइन्स हमें पंचमार्क में मिले हैं. वो किससे बने थे? सिल्वर से और कॉपर से बने थे. जो पीरियड है वो 5th सेंचुरी BC का है. मतलब ये कॉइन्स जो है वो 5th सेंचुरी BC के है, ऐसा हमें लगता है और ऐसा हमने फाइंड आउट किया है. दिस कॉइन्स वर ऑफ डिफरेंट शेप्स. अलग अलग शेप्स के थे. देखो यहाँ पे आपने देखा ना. और ये जो है वो उसको सिम्बॉल्स और साइंस कहते हैं. ठीक है, उसको जो है हिस्टोरियन उसको अंडरस्टैंड करता है कि ये क्या सब ड्रॉ किया है. हम तो नहीं समझ पाते बट वो लोग जो है उसकी पूरी स्टडी करते हैं. ठीक है, इंस्क्रिप्शंस मेड ऑन दी पिलर्स. पिलर्स मतलब आपको पता ही है जो खंभे होते हैं. ठीक है, उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन है, उसके ऊपर जो कोतरणी हम बोलते हैं ना, वो जो की है या उसके ऊपर कुछ भी लिखा है, वो कुछ भी इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं. ठीक है, तो उसको भी स्टडी करते हैं. और जो स्टोन्स है उसके ऊपर कुछ भी लिखा है तो वो भी एज यूजफुल एज कॉइन्स है इन स्टडिंग द हिस्ट्री. ठीक है, द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन इन इंडिया आर दैट ऑफ द अशोक्स टाइम. अशोक के टाइम के जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ओल्डेस्ट है. इकोलॉजीज रिटन बाय द पोएट अबाउट द किंग्स आर कॉल्ड अप्रिसिएशन. अभी कोई भी इकोलॉजी कोई भी किंग के बारे में लिखी है तो उसको हम कहते हैं अप्रिसिएशन. द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द अशोक वर रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज ऑफ द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ब्राह्मी स्क्रिप्ट की प्राकृत लैंग्वेज, एक स्क्रिप्ट होती है और उसकी एक लैंग्वेज होती है. ठीक है, तो उस स्क्रिप्ट की
प्राकृत लैंग्वेज में अशोका के इंस्क्रिप्शंस जो है वो लिखे गए थे। ये द स्क्रिप्ट ऑफ द inscriptions found in North India is that of the Kharoshti script जो है वो नॉर्थ इंडिया में फाउंड की गई है। एंड द inscriptions found in Afghanistan are in the Aramaic, that is in the Greek script। ठीक है, ग्रीक स्क्रिप्ट की अरेमिक, ठीक है, उस लैंग्वेज में ये अफगानिस्तान के लिटरेचर लिखे हैं। The honor of the deciphering the inscription of Ashoka goes to James Prinsep। ये नाम बहुत ही फेमस है हिस्ट्री में, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप का नाम जो है वो हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उनको ये जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है उसको डेसिफर अगर किसी ने किया हो, अंडरस्टैंड अगर किसी ने किया हो, तो वो है जेम्स प्रिंसेप। He deciphered the Brahmi script from the inscription in 1822। कब किया था? 1827 में, not 22, I'm sorry, 1827 में। Brahmi script was written from left to right, left to right। This is your left and this is your right, so left to right जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं वैसे ही, ठीक है, इस साइड लेफ्ट टू राइट हम लिखते थे ब्रह्मी स्क्रिप्ट को। खारोष्टी स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो राइट टू लेफ्ट। कौन सी? खारोष्टी, ठीक है। खारोष्टी स्क्रिप्ट हम ऐसे लिखते थे और ये जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट, उसको हम ऐसे लिखते थे इस साइड, ठीक है। ये ऐसे करने से आपको थोड़ा सा जल्दी याद रह जाता है, इसलिए मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, ठीक है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर मोर देन 25। अशोका के इंस्क्रिप्शन मोर देन 25 है। वी डिराइव एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पॉलिसीज फ्रॉम देम। हमको ये 4 चीज़ें उसमें से मिलती है, ठीक है। ये 3 चीज़ें, सॉरी, ओके, उसमें से हम और समझते हैं। द किंग्स ऑफ दी सतवहना had inscribed writings found near the Nasik। Okay, today let's keep until this, okay, sorry, till this, and now in this next part we will understand the rest of the chapter, and now we are remained with only, I think, around I think 2 pages, okay, बिकॉज पीछे भी थोड़ा सा है और यहाँ पे भी थोड़ा सा है, तो 2 पेज